खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हम सबको आज ये मौका बख्शा है कि हम खुदा के बहुत बड़े खादिम पास्टर जोनाथन जो मेरे दोस्त हैं अमेरिका से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ये वो खुदा के बंदे हैं जिनके साथ मैं अफ्रीका गया था खुदा का कलाम सुनाने के लिए। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक इबादत के अंदर 150 लोगों ने अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दी थी। हमने बहुत क्रूसेड्स वहाँ पर किए, तो आज हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। मैंने अफ्रीका में जब ये कलाम सुनाते थे लोगों को बरकत पाते देखा है, और इनका खास जो आपके लिए कहने की गिफ्ट है, बरकत है, वो है कि ये खुशहाली के बारे में जब सिखाते हैं तो लोगों की जिंदगी बदलती है। ये लोगों को बताते हैं कि खुदा आपको कैसे माली बरकतें दे सकता है। पास्टर जोनाथन, we are so honored to have you this morning. We welcome you this morning. Oh, thank you so much. And we are so thankful to be here. We are so honored to have you this morning. Thank you. I just gave a brief introduction of you. I told them how God has been using you to prosper people and how God has given you this special gift to encourage people to be wealthy and get financially well. That's your special gift from God. Amen. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. So I don't want to take any more time. So I want to just invite you. We will welcome you by clapping our hands. And God will bless us. It's your time. Say that again. It's your time now. Okay. All right. So I'm going to first of all, let me say it's an honor to be with you today. वो कह रहे हैं कि हमारे लिए मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, इज्जत की बात है कि आज सुबह आपके दरमियान हैं। And I appreciate so much your pastor and all that he's doing in Pakistan and all over the world. और वो कह रहे हैं कि मैं आपके पादरी की तारीफ करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो पाकिस्तान में जो कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जो कर रहे हैं। And I just want to appreciate the leadership team of the church that was so faithful to distribute the food to the needy during the lockdown. और जितने इस चर्च के लीडर्स हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इनकी वजह से हमने वो फूड का प्रोजेक्ट राशन जो तकसीम किया था, कहते हैं कि जितना राशन आपने तकसीम किया है मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। As we saw the pictures and I showed the pictures of the church, we were so excited to see what God was doing there in your church. जब हमने चर्च में अमेरिका में आपकी तस्वीरें देखी कि कैसे खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो हम बड़े खुश हुए। Amen. Amen. Hallelujah. Let me share a short message, and following the message, I will pray for any person that is sick. We want to believe God with you for a miracle today. और वो कह रहे कि मैं छोटा सा पैगाम दूंगा, उसके बाद मैं जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करूंगा, जो जरूरतमंद हैं उनके लिए दुआ करूंगा कि खुदा मौजज़ा करे आपसे। I'll read first of all from the book of Matthew chapter 4 and verse 23. और आए खुदा के कलाम को खोले, मत्ती की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 43। This is the very first verse in the New Testament that talks to us about the healing ministry of Jesus. Okay, just a minute, Pastor. Matthew 4 verse 23. 23. Okay. मत्ती की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 23वीं आयत हम देखेंगे। मत्ती की इंजील 4था बाब और उसकी 23वीं आयत। So the scripture says that Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every disease and sickness among the people. और खुदा के कलाम में लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। This is the very first verse in the New Testament that talks to us about the healing ministry of Jesus. ये इंजीलों के अंदर पहली आयत है जिसमें यीशु मसीह की शिफाया कुदरत का बयान किया गया है। यीशु बीमारों को शिफा देता है। It gives us a pattern of how Jesus ministered healing to the sick. और इससे हमें पता चलता है
Notice the Bible says that first of all he was teaching and preaching. और बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह सबसे पहला जो काम करता था वो सिखाता था, तालीम देता था और मुनादी करता था खुशखबरी की। The Bible says that as Jesus taught the people, the power of the Lord was present to heal them. और जब यीशु मसीह ने लोगों को तालीम दी तो खुदा की कुदरत शिफा देने के लिए नाजिल होती थी। The Bible says that God sent His word and it healed them. और बाइबल में लिखा है कि खुदा अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा देता है। Jesus' ministry is the same today as it was then. और यीशु मसीह की खिदमत जैसे पहले थी वैसे ही आज भी है। ऐसा है जो यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान हुआ। But it follows in the exact pattern as we see in Matthew chapter 4. और इसके अंदर वही तरीका है मुआवजे का, शिफा का है जो चौथे बाब में हमें नजर आता है, तालीम और खुशखबरी के बाद में शिफा। Jesus preaches the gospel. और यहाँ पर लिखा है कि यीशु मुनादी करता था। And it's through that message that he ministers power into the life of a man who's paralyzed. और यीशु मसीह जब कलाम सुना रहा था, खुशखबरी सुना रहा था, तो उसकी शिफा उस मफलूज पर नाजिल हुई। And the man is gloriously healed. और खुदा ने उसे शिफा दी। I'll read Matthew chapter 9 verse 1. और मत्ती की इंजील 9वें बाब की पहली आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। Jesus stepped into a boat, crossed over and came to his own town. Then I'll read the next verse. Some people brought to him a paralyzed man lying on a mat. When Jesus saw their faith, he said to the man, "Take heart, son, your sins are forgiven you." और यहाँ पर लिखा है फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रहा, तेरा गुनाह मुआफ हुआ। That Jesus is there. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And so they bring to Jesus this paralyzed man. जब इस मफलूज को वो यीशु मसीह के पास लेकर आए, but notice what Jesus does. और देखिए यीशु ने क्या किया है। Jesus says to the young man, और यीशु मसीह ने उससे कहा, one translation says it like this. Jesus says, "Be happy, your sins are forgiven you." और एक तर्जुमे में लिखा है कि यीशु ने कहा, खुश हो क्योंकि तेरे गुनाह माफ हो गए हैं। You see, Jesus is so powerful. आप जानते हैं कि यीशु बहुत ताकतवर है, बहुत कुदरत वाला है। He preaches a one-sentence sermon to this man. और यीशु मसीह एक ही पैगाम देता है। What is Jesus doing? यीशु मसीह क्या कर रहा है यहाँ पर? He's preaching the gospel to this man. और यीशु मसीह इस आदमी को इंजील का पैगाम सुना रहा है, खुशखबरी दे रहा है। And he says to him, और यीशु मसीह ने उससे कहा, "Be happy, खुश हो, be joyful, खुश हो, your sins are forgiven you." क्योंकि तेरे गुनाह माफ हो गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. Now, the man came to be healed. और यीशु मसीह ने जब उससे ये कहा तो उस आदमी ने शिफा पाना शुरू की। So Jesus is going to heal him. और यीशु मसीह ने उसे शिफा दी। And he says to the man, और उसने उस आदमी से कहा, "Be happy that your sins are forgiven you." कि खुश हो क्योंकि तेरे गुनाह माफ हो गए हैं। Now, let's stop there for a second. एक मिनट के लिए रुके, एक सेकंड के लिए रुके। As soon as Jesus said that, यीशु मसीह ने जैसे ही उससे कहा, the Pharisees and the teachers began to murmur among themselves. और फकीर और फरीसी जो हैं वो बड़बड़ाना शुरू हो गए यीशु के खिलाफ। They began to accuse Jesus of blasphemy because he had forgiven the sins of this man. और फकीरों ने यीशु पर इल्जाम लगाया कि ये कैसे गुनाह माफ कर सकता है, ये कुफर बकता है। So the next couple of scriptures, और बाइबल के अंदर लिखा है, Jesus is having a conversation with the Pharisees. और यीशु मसीह की जो बातचीत है फकीरों से हुई, फरीसियों से हुई। But what is the paralyzed man doing? और ये जो मफलूज है ये क्या कर रहा था? He's still lying there on that mat on the floor. और अभी तक अपने बिस्तर पर या अपने उस बिछौने पर लेटा हुआ था। But what is he doing? लेकिन वो क्या कर रहा था लेटा हुआ?
He's believing the message of Jesus. और वो उस पैगाम पर ईमान रख रहा था जो यीशु मसीह दे रहा था, That he is to be happy because his sins are forgiven him. और वो खुश था कि उसके गुनाह माफ हो गए हैं। So the man is laying there. और आदमी वहां पर लेटा हुआ है। He could have said, "Oh Jesus, I can't be happy. और उसने यीशु से ये भी कहा कि यीशु मैं खुश हो गया हूँ। My body is paralyzed. मेरा जिस्म जो है मफलूज है। How can I be happy? I'm sick in my body." मैं कैसे खुश हो सकता हूँ क्योंकि मेरा बदन तो बीमार है अभी तक। He could have said, "Jesus, I have so many problems. और वो ये नहीं कह सकते यीशु तूने मेरे मसले को हल कर दिया है। I can't work a job and provide food for my family. How can I be happy?" और उसने यीशु से ये नहीं कहा कि मैं अपने काम कर सकता हूँ, अपने खानदान के लिए रोटी कमा सकता हूँ। But Jesus said, "Be happy that your sins are forgiven you." लेकिन यीशु ने उससे कहा खुश हो क्योंकि तेरे गुनाह माफ हो गए हैं। So the man laying there on the floor, और जो आदमी फर्श पर लेटा हुआ था, he forgets all of his problems वो सारे अपने मसाइल भूल गया and begins to think about what Jesus said. और वो सिर्फ उस बात पर तवज्जो कर रहा था जो यीशु कह रहा था My sins are forgiven. कि मेरे गुनाह माफ हो गए हैं। Oh, hallelujah. हालेलुया। Suddenly he has joy in his heart. और खुशी उसके दिल से बाहर आ रही थी Suddenly he becomes very happy. और वो बहुत खुश था So happy that his sins are forgiven. कि उसके गुनाह माफ हो गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। So he's laying there on the mat just praising God that his sins और वो are forgiven him. उस बिस्तर पर बिछौने पर लेटा हुआ है, But what is he doing? लेकिन वो क्या कर रहा था लेटकर? He's believing the gospel. वो इंजील पर ईमान ला रहा था, खुशखबरी पर ईमान ला रहा था। And the power of God is at work in his life. और खुदा की कुदरत काम कर रही थी जब यीशु कलाम कर रहा था। Oh, hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Jesus finishes his conversation with और the जैसे Pharisees. ही यीशु मसीह ने यहूदियों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म की, He turns to the paralyzed man यीशु मसीह मफलूज की तरफ आया and he says to him, और उसने उससे कहा "Pick up your bed and walk." कि अपना बिस्तर ले और उठ। And the man is healed. और वो आदमी शिफायाब हो गया। Hallelujah. हालेलुया। But understand this. Understand this. इस बात को समझने की कोशिश करें That the power to heal him came from the fact that Jesus preached to him. और आप जानते हैं कि शिफा देने की कुदरत इस पैगाम के अंदर से निकली थी जो यीशु ने सुनाया। He believed that message. और उसने उस पैगाम पर ईमान रखा जो यीशु ने सुनाया। He acted on that message. He became happy. He began to praise God that his sin was forgiven. और उसने पैगाम पर अमल किया, वो खुश था कि उसके गुनाह बख्शे गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now that, my friend, is the message that God would have me to give you right now. और आज शुभ यही पैगाम आपको शिफा दे सकता है। Maybe you're sitting in church right now हो सकता है कि आपकी जिंदगी में अभी गुनाह हो, and you have sickness in your body. हो सकता है कि आपके बदन के अंदर बीमारी हो, Maybe you have pain in your bones. हो सकता है कि आपकी हड्डियों में दर्द हो, And all of that sickness has impacted your life in so many ways. और ये बीमारी जो है इसने आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब करके रख दिया है। And you're thinking about your difficulties, your problems, and your pain. और आप अपनी बीमारी और अपनी दर्द के बारे में सोच रहे हैं। Oh, but I have good news for you और today. मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। God sees you right where you are. खुदा आपको देख रहा है, आप जिस भी हालत में हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, दर्द है, खुदा देख रहा है। He knows your name. He knows your need today. वो आपका नाम जानता है, वो आपकी जरूरत जानता है। And he sent me to here to share with you this message. और जब मैंने ये पैगाम आपके साथ शेयर किया है, Take your eyes off of your problems. अपनी आंखें अपनी मुसीबतों पर से हटा लें, नजरें मुसीबत से हटाएं। Take your eyes off of the impossibilities. और आप तवज्जो इस बात पर करें कि खुदा कुछ भी कर सकता है। And put your mind on Jesus. और अपना ज़हन यीशु की तरफ लगाएं। And the message of his grace, the message of his love. और उसकी मोहब्बत और उसके फजल के पैगाम पर अपना दिल लगाएं। He
died for your sins. वो आपके गुनाह के लिए मर गया। He shed his blood for all of your sins. और उसने हमारे गुनाहों के लिए अपना खून बहाया। And he says to you today, और वो आज सुबह आपसे कह रहा है, be happy. खुश हो। Be happy. खुश हो। Your sins are forgiven. आपके गुनाह माफ हो गए हैं। Oh, hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And the moment you believe your sins are forgiven, और जैसे ही आप ईमान रखते हैं कि आपके गुनाह माफ हो गए हैं, and you get happy and joyful and begin to rejoice that your sins are forgiven, और आप खुश होना शुरू हो कि आपके गुनाह माफ हो गए हैं, the power of God begins to work in your और life. खुदा उनकी कुदरत आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगी। And that power drives the pain out of your life. और ये कुदरत जो आपकी जिंदगी से हर तरह की दर्द को दूर कर देगी। And God heals you today. खुदावंद आज सुबह आपको शिफा देगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Everyone say hallelujah. सब कहें हालेलुया। फिर कहेंगे हालेलुया। Amen. आमीन। Do you understand my message today? क्या आपको मेरे पैगाम की समझ आई? Yes. Amen. आमीन। Amen. आमीन। So many people, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग who are sick, जो बीमार हैं, they feel so condemned. वो बहुत ज्यादा दुख में हैं, दर्द में हैं, They feel guilty, thinking, "Oh, I must have done something terrible." और वो अपने अंदर एहसास जुर्म महसूस कर रहे हैं कि मैंने गुनाह किए हैं। But Jesus says to you today, लेकिन यीशु मसीह आज सुबह आपसे कह रहा है your sins are forgiven. कि आपके गुनाह बख्शे गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। So in Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से the power of God begins to work in your life and heal you right where you are today. खुदावंद की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगी और जहां पर भी आप है आपको शिफा देगी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Now, if God gives to you an instruction, अगर खुदा आपको कोई हदायत देता है, नसीहत करता है, being obedient to that instruction is key to your miracle. और उस हदायत को फॉलो करें, वो आपके मौजज़े को लेकर आएगी। Think about all the miracles throughout the Bible. आप बाइबल के अंदर मौजज़ों को देखें। Think about Moses at the Red Sea. और मूसा को बहरे कुलसम पर देखें। God gave him a very simple instruction. खुदा ने उसे बड़ी सादा सी हदायत की, उसे बताया कि उसे क्या करना है। He says, "Moses, raise your rod." खुदा ने मूसा से कहा, मूसा अपनी लाठी उठा। Was it difficult? It was easy. और ये आसान था। And so Moses raised his rod, और जैसे मूसा ने अपनी लाठी उठाई, and God parted the waters. और खुदा ने बहरे कुलसम को दो हिस्से कर दिया। Amen. आमीन। What about Naaman in the Bible? और नमान के बारे में आप जानते हैं, जो नमान कोढ़ी था। Naaman had leprosy. और नमान कोढ़ी था। God gave him a very simple instruction. खुदा ने उसे बड़ी सादा सी तजवीज दी, नसीहत की, हदायत की। Go to the river of Jordan and dip in the water 7 times. कि दरिया यरदन में जहाँ 7 होते मार। It wasn't hard, it was very easy. ये कोई मुश्किल काम नहीं था, दरिया यरदन में जाकर होते मारना। So God says to you today, और खुदा आज सुबह आपसे कह रहा है, if you will do a small thing, अगर आप छोटी सी सादा सी चीज करेंगे, तो मैं आपको शिफा दूंगा। hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। God says, और खुदा फरमाता है, you do what a human can do. खुदा कहता है God कि said, जो I'll do what only God can do. खुदावंद कहता है कि जो तुम्हारे करने वाला काम है तुम करो और बाकी सब कुछ मैं करूं। So what is God saying to you through this message? आज खुदा इस पैगाम के जरिए से आपसे क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है? What is his simple instruction is that you simply become very happy and joyful that your sins are forgiven you. और सादा सी बात यह है कि आपको खुश होना चाहिए कि आपके गुनाह बख्शे गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। How many people understand that? मैं चाहता हूं कि मेरा ईमान है कि आप समझ गए होंगे मैं बात क्या कर रहा हूं।
You understand? आप मेरी बात को समझ, कितने हैं जो मेरी बात को समझे? आप शो कर सकते हैं, just let me show. Now, let me ask you a question. Let me show their hands. Yeah. Okay, कितने इस बात को समझ गए हैं? कितने पैगाम को समझे हैं? You can see hands. Okay, can you see hands? Healing today. और खुदावंद आपको शिफा देगा आज सुबह. Raise up your hand. You need healing today. कितनों को शिफा की जरूरत है? अपने हाथ उठाएं. आशा दोबारा से. कितनों को शिफा की जरूरत है? अपने हाथ उठाएं. Every person that needs a miracle today, I'm going to ask you to stand up on your feet. और जिसको आज सुबह मर्ज़ा चाहिए, वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए. जिसको शिफा चाहिए, अपने कदमों पर खड़ा हो जाए. जिसको मर्ज़ा चाहिए, अपने कदमों पर खड़ा हो जाए. हालेलुया. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, now I want you to lay your hand on your body where you suffer, where you are in pain. जहाँ पर आपको तकलीफ है, अपना हाथ रखिए. जहाँ पर आपको तकलीफ है, अपना हाथ रखिए. जहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम है, उस पर अपना हाथ रखिए. Hallelujah. I want you to pray with me. और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर दुआ करें. Say thank you, Jesus. कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो. Everyone loud. Thank you, Jesus. ऊंची आवाज से कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो. I've heard your message today. मैंने तेरा पैगाम सुना है. I believe your message. मैं तेरे पैगाम पर ईमान रखता हूँ. Now thank you, Jesus. मैं खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करता हूँ. That my sins are forgiven me. कि मेरे गुनाह बख्शे गए हैं. Jesus, right now, यीशु मसीह अभी से by faith, I receive that I am forgiven. मैं ईमान से कबूल करता हूँ कि मेरे गुनाह बख्शे गए हैं. Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो. I'm so happy. मैं आपसे बहुत खुश हूँ. I'm so joyful मैं बहुत खुश हूँ that my sins are forgiven कि me. तूने मेरे गुनाह बख्श दिए हैं. Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. खुदा उनकी तारीफ हो. Now, in Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से I take authority over every sickness in your body. मैं उस इख्तियार को लेता हूँ यीशु ने दिया है. इन बदनों पर तेरी शिफा को मांगता हूँ. I take authority over the spirit of infirmity. ऐ खुदा हर तरह के गुनाह के खिलाफ मैं अपने इख्तियार का इस्तेमाल करता हूँ. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से I command you to come out of their bodies. कि हर तरह की बीमारी में बदनों में से यीशु के नाम से बाहर निकल जा. I break your power. बीमारी में तेरी सारी कुदरत को तोड़ देता हूँ. Loose them now in Jesus' कि name. अभी से यीशु के नाम से बदलों को आजाद कर दे. Hallelujah. हालेलुया. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से God's power is coming on you right now. खुदावंद की शिफा आपके बदनों पर जारी हो चुकी है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Out loud. Say thank you, Jesus. सब फिर से कहेंगे यीशु तेरा शुक्र हो. सब ऊंची आवाज से यीशु तेरा शुक्र हो. I receive my healing. कि मैंने अपनी शिफा को ले लिया है. I believe you're healing me now. मैं ईमान रखता हूँ कि तू मुझे शिफा दे रहा है. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमीन. Now, right now, अभी I want you to act your faith. मैं चाहता हूँ कि आप अपने ईमान का मुजाहरा करें. Do what you couldn't do before. जो पहले आप नहीं कर सकते थे करने की कोशिश करें. अगर आप नहीं झुक सकते थे झुकने की कोशिश करें. चल नहीं सकते थे चलने की कोशिश करें. आप सुन नहीं सकते थे. Then you move your body. Begin to move your body. अपने जिस्म को हरकत देना शुरू करें. अगर सुन नहीं सकते थे कोशिश करें कि आप सुन रहे हैं कि नहीं.
Believe that God is healing you now. ईमान रखें कि यीशु आपको भी शिफा दे रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Act your faith. अपने ईमान का मुजाहरा करें, अपने ईमान पर अमल करें। जो खुदा ने आपको शिफा दी, चेक करें अपने आप को। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Yes, sir. Hallelujah. हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Praise God. Praise. Hallelujah. आशीर्वाद नहीं आता। Wonderful. Thank you, Pastor. You're welcome, Pastor. We are so thankful to you. You want me to ask some testimonies, just one or two testimonies? Yes, that'd be great. अगर आप में से कोई शिफा पा गया है, तो दो गवाहियां आ सकती हैं, भाइयों में से एक बहनों में से। अगर आप समझते हैं कि यीशु ने आपकी जिंदगी में भी काम किया है, तो आप गवाही दे सकते हैं। नहीं तो भी thank you Jesus, hallelujah. So no one is coming forward. I said okay, we will move forward. Okay. So Okay. yes, please. You want to just, what's the plan now, brother? Okay. So I'm going to turn it over to you. Just a minute. आप गवाही देना चाहते हैं? किधर? आंटी जी आ रही हैं। एक there is one old lady. She wants to give testimony. Okay. Beautiful. But there are two actually. आंटी जी सामने आ जाए, आप सामने आ जाए। वाकरो लचका ये गवाही देना। Hallelujah. She was unable to see, but now she can see very clearly. Hallelujah. What happened? Tell me again. She was unable to see from her one eye, but now she can see very clearly. Wow. Praise God. Hallelujah. बता दे सबको। आपकी जब बिल्कुल साफ क्लियर नजर आ गया है। Hallelujah. यीशु के नाम। आप ये ना समझे कि अभी आपको शिफा नहीं, खुदा उनकी कुदरत काम कर रही, बैठे बैठे किसी भी वक्त आप हील हो सकते हैं। ये खुदा का स्टाइल है। There is one more lady. मेरी गवाही है ਜਦੋਂ मैं आप में बैठी हूँ मेरी लात से बहुत दर्द सी अंजलि डिलीवरी है ना बड़ी दर्द सी और मेरी बिल्कुल दर्द है जो खत्म हो गई। Praise God. Hallelujah. When she came to church, her one leg was paining very badly, but now she got healed. Praise God. No more pain. In Jesus' name. Hallelujah. Here, tell the people that what God has done for these two ladies, He wants to do for everybody. और वो कह रहे हैं कि जो खुदा ने इन दो बहनों के लिए किया है, वो आपके लिए भी कर रहा है, वो आपके लिए कर सकता है। Hallelujah. This is the beginning of miracles in this service. ये शिफा और मौजज़े का आगाज है इस इबादत में और मौजज़े होने लगे हैं। Praise God. There is one more. मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और ये मेरा जो राइट हैंड वाला जॉइंट है जो काम नहीं करता था, मूव नहीं करता। Her right shoulder was not moving when she came to church. हाँ, और ये दुआ के वसीले खुदा उनका शुक्र है अपना जलाल ज़ाहिर है। Now she can move it. Hallelujah. ये जॉइंट जो है मूव नहीं करता था, यहाँ बहुत ज़्यादा पेन है। अब खुदा उनका शुक्र है कि ये Praise God. Hallelujah. आपका शुक्र बनाकर इस्तेमाल करता है। Hallelujah. She said, may God use you mightily like this always. Hallelujah. Amen. Beautiful. Beautiful. बहुत खूबसूरत बात है। आशीर्वाद रखना। Amen. Thank you so much. God bless you. You're welcome, Pastor. Okay, now we will sing last song, then we will dismiss this service and we will start next service. Do you want to stay with us? You want to listen our song? Yes. Okay. Hallelujah. एक बार फिर यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां।